डे 9 टुडे। एक हफ्ता और एक दिन पूरा हो गया है। कपड़े जैसे कि आप देख सकते हो, माई बेड इज़ नाउ क्लीन। पूरे कपड़े तय हो चुके हैं, वो कल ही कर दिया था। अभी जैसे कल आई वॉज हैविंग ट्रबल कि मैं बात क्या करूँ, क्या बोलूँ, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा आई स्टार्ट रीडिंग अ बुक। ये है खलील जिब्रान, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस इट, बट खलील जिब्रान, उनका कलेक्टेड वर्क्स है, उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। सो आई बी रीडिंग दीज। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉम द फर्स्ट पेज, हु इज़ खलील जिब्रान, लेट्स नो दैट। अ राइटर ऑफ द न्यूयॉर्क पेन लीग, मैं थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। A writer of the New York Pen League, Khalil Gibran was born Gibran Khalil Gibran on 6 January 1883 in the town of Bashari, Mount Lebanon, Ottoman Syria. लेबनान जहाँ पर अभी बमबारी हो रही है, आई थिंक वही जगह है। Ottoman Syria, north of modern day Lebanon. Owing to his family's poor financial condition, Gibran did not receive any formal education in his childhood. He was taught at home by the visiting priests. When Gibran was around 8 years old, his father was found guilty of embezzlement and imprisoned. In 1895, Gibran moved to Boston with his family. Here he was enrolled in a school while his mother started working as a seamstress peddler. Gibran also joined an art school and received encouragement and support from Fred Hollandale, a publisher, a photographer, and artist to whom he was introduced by his teachers. A few years later, his drawings and illustrations were used by a publisher for book covers. In 1898, Gibran was sent back to his native land where he joined Al-Hikma, a Maronite-run preparatory school and higher education institute in Beirut. With an eager interest in writing and poetry, Gibran began a student magazine and was elected the college poet. He returned to Boston in 1902, having lost his sister Sultana and his brother Peter and his mother. It was his sister Mariana who supported him now. In 1904, his first exhibition was held at Day's studio in Boston. He met Mary Elizabeth Haskell here, who helped him advance his career. She not only taught him English but also supported him financially and became his editor. Most of Gibran's early works were written in Arabic. His first work was a work about music. It was titled Nukta fi Fan al-Musika and was published in 1905. Ara is al-Muruj, his second work, was published the next year. It was translated as Nymphs of the Valley, Spirit Brides, and also as Brides of the Prairie. At the age of 25, he went to Paris to study art. In the same year, his third work, Al-Arwa al-Mutmarida, Rebellious Spirits, was published. In Paris, his skills in oil and pastel improved. His paintings became a part of many renowned shows and exhibitions. He returned to US in 1910 and moved to New York the following year. His next work, Al-Ajinha al-Mutaksira, Broken Wings, was published in 1912. A Tale of Tragic Love, and this poetic novel is his longest work. It also depicts the various social issues, including women's emancipation and religious corruption prevalent in those days in the Eastern Mediterranean. His other works, first published in Arabic, include Dama wa Ibtisama, A Tear and a Smile, 1914, Al-Mawakib, The Processions, 1919, Al-Awasif, The Tempest, 1920, and Al-Bada'i wal Taraif, The New and the Marvelous, 1923. Many of his works were written and published in English. These include The Madman, 1918, 20 Drawings, 1919, The Forerunner, 1920, The Prophet, 1923, Sand and Foam, 1926, and The Earth Gods, 1931. The collections of his works published after his death include Prose Poems, 1934, Secrets of the Heart, 1947, Mirrors of the Soul, 1965, The Storm, 1994, and The Beloved, 1994. I was born in 1994.
Collected works of Khalil Gibran is a collection of some of Gibran's best loved writings. It comprises of the English translations of Nymphs of the Valley, Tear and Laughter, Spirit Rebellious, and The Broken Wings. Also included are the works The Madman, The Prophet, The Forerunner, and Sand and Foam, which were written in English. The Wanderer, which was published posthumously in 1932, also forms a part of this collection. With a strong element of mysticism, which is influenced by Islam, Christianity, Theosophy, and Judaism, his work deals with spiritual love, joy and sorrow, marriage, children, and death. Gibran died from tuberculosis and liver cirrhosis on 10th April 1931 in New York. He is best remembered for The Prophet, 1923, a collection of 26 fables which has been translated into more than 40 languages and continues to remain a masterpiece. So I just translated it in Hindi. I'll translate it in Hindi. न्यूयॉर्क पेन के एक राइटर थे खलील गिब्रान. उनका जन्म 6 जनवरी 1883 बशारी माउंट लेबनान ऑटोमन सीरिया में हुआ. उनका परिवार गरीबी में जूझता हुआ था. उनका परिवार गरीब था, इसीलिए गिब्रान को कोई फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक रूप से जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली. उन्हें घर पर ही पढ़ाया जाता था. कुछ प्रीस्ट्स थे, कुछ मौलवी थे जो उन्हें घर पर आकर पढ़ाया करते थे. जब गिब्रान 8 साल के थे तब उनके पापा को एम्बेजलमेंट के जुर्म में गिरफ्तार किया गया. 1895 में गिब्रान बॉस्टन चले गए अपनी फैमिली के साथ. यहाँ पर एक स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया और उनकी माँ सीमस्ट्रेस पेडलर, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, सीमस्ट्रेस पेडलर की तरह काम करने लगी. जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है सिलाई बुनाई का काम करने लगी. दैट इज़ माई इंटरप्रिटेशन ऑफ इट. गिब्रान ने एक आर्ट स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था और उन्हें फ्रेड हॉलैंडे से इंकरेजमेंट और सपोर्ट मिला. फ्रेड हॉलैंडे एक पब्लिशर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट थे जिन्हें उनके टीचर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था. कुछ सालों के बाद उनकी ड्राइंग्स, उनकी इलस्ट्रेशंस पब्लिशर इस्तेमाल करने लगे बुक कवर्स के लिए. 1898 में 1898 में गिब्रान को वापस उनके घर, उनके नेटिव प्लेस पे भेज दिया गया जहाँ पर उन्होंने अल हिकमा को ज्वाइन किया. अल हिकमा एक स्कूल था, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट था बेरट में, जहाँ पर उनको राइटिंग और पोइट्री में इंटरेस्ट आया. और राइटिंग और पोइट्री में इंटरेस्ट आने के बाद उन्होंने एक स्टूडेंट मैगज़ीन शुरू करी और वो कॉलेज पोइट की तरह इलेक्ट हो गया. उसके बाद वो बॉस्टन वापस आ गए 1902 यानी कि 1902 में. अब वो अपनी बहन सुल्ताना, उनके भाई पीटर, उनकी अम्मी सबको खो चुके थे. अब सिर्फ उनकी एक बहन बची थी मरियाना, जिन्होंने उन्हें अभी सपोर्ट करना शुरू किया. 1904 में उनकी पहली एग्जीबिशन हुई डे स्टूडियो में बॉस्टन में. वहाँ पर वो मैरी एलिजाबेथ हास्कल से मिले जिन्होंने उनके करियर में आगे बढ़ने में मदद की. उन्होंने सिर्फ गिब्रान को अंग्रेज़ी नहीं सिखाई, जबकि उन्हें फाइनेंशियली भी हेल्प की, आर्थिक रूप से उनकी मदद की और वो उनकी एडिटर भी बन गई, संपादक. जो गिब्रान का शुरुआती काम था वो अरबिक में लिखा गया था. उनका पहला काम म्यूज़िक के बारे में था. उसका नाम था नुक्ता फ़ी फ़न अल मुसैका और वो 1905 में पब्लिश हुआ. उसके बाद अराइज़ अल मुरुज उनकी दूसरी किताब थी, वो अगले ही साल 1906 में पब्लिश हुई. उसे ट्रांसलेट किया गया निम्स ऑफ द वैली, स्पिरिट ब्राइड्स या फिर ब्राइड्स ऑफ द प्रेयरी के रूप में भी, अंग्रेज़ी में उसका नाम था इस टाइटल का. 25 साल की उम्र में वो पेरिस चले गए आर्ट पढ़ने के लिए. उसी साल उनका तीसरा काम अल अरवा अल मुतमरीदा, रिबेलियस स्पिरिट्स भी पब्लिश हुआ. पेरिस में उन्होंने अपनी ऑयल्स और पेस्टल्स की जो स्किल थी उसे इम्प्रूव किया, यानी कि अपनी ड्राइंग की जो स्किल थी, पेंटिंग्स बनाने की जो स्किल थी उसे इम्प्रूव किया. उनकी पेंटिंग्स बहुत सारे रेनॉन्ड शोज़ यानी कि बहुत मशहूर शोज़ और एग्जीबिशंस का हिस्सा बनी. 1910 में वो वापस यूएस लौट आए और उसके बाद में वो बॉस्टन में ही न्यूयॉर्क चले गए. उसके अगले साल 1911 में वो न्यूयॉर्क चले गए. उनका जो अगला काम है अल अज़निहा अल मुतक्सरा ब्रोकन विंग्स, वो 1912 में पब्लिश हुआ. ये जो ब्रोकन विंग्स है ये कहानी है ट्रैजिक लव की. ये जो पोइटिक नावल है ये उनका सबसे लंबा काम है, नावल यानी कि उपन्यास. इसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज़ भी हैं, जैसे
औरतों का इमेंसिपेशन का अर्थ मुझे नहीं मालूम है, और रिलीजियस करप्शन जो उस टाइम पे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में बहुत ज़्यादा होता था। उनका जो बाकी काम है अरबिक में वो है तमावा इब्तिसमा, ये 1914 में था। अंग्रेज़ी में है अ टीयर एंड अ स्माइल। अल मवाक़िअत द प्रोसेशंस 1919 में, अल अवासिफ द टेम्पेस्ट 1920 में, अल बदाई वाल ताराइफ द न्यू एंड द मार्वेलस 1923 में। उनका बहुत सारा काम इंग्लिश में लिखा गया और इंग्लिश में ही पब्लिश हुआ। इसमें है मैडमैन 1918, 20 ड्राइंग्स 1919, द फॉरेनर 1920, प्रॉफिट 1923, सैंड एंड फोम 1926, द अर्थ गॉड्स 1931। उनका ये जो काम है, उनकी मृत्यु के बाद भी कुछ काम उनका पब्लिश हुआ, जैसे कि प्रोज पोएम्स 1934 में, सीक्रेट्स ऑफ द हार्ट 1947 में, मिरर्स ऑफ द सोल 1965 में, द स्टॉर्म 1994 1994 में, और द बिलीव्ड भी 1994 में। अब ये जो किताब है जिसका नाम है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ खलील गिब्रान, ये एक कलेक्शन है, ये एक संग्रह है गिब्रान की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लेख जो उन्होंने लिखा है उसका। इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन है नेम्स ऑफ द वैली के, टीयर्स एंड लाफ्टर के, स्पिरिट रेबेलियस के, ब्रोकन विंग्स के। इसमें मैडमैन, प्रॉफिट, फोर रनर, सैंड एंड फॉर्म भी हैं जो अंग्रेज़ी में ही लिखे गए थे। द वैंडरर जो 1932 में पब्लिश हुआ था, पॉस्ट्यूमसली का मतलब भी मुझे नहीं मालूम, वो भी उनके इस कलेक्शन का हिस्सा है। उनका जो उनकी जो लिखाई थी उसमें मिस्टिसिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय ऑल द रिलीजन्स, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, थियोसॉफी और जुडाइज़म। उनका जो काम है वो स्पिरिचुअल लव, जॉय, सॉरो, मैरिज, शादी, बच्चे, मृत्यु, इन सब के बारे में बात करता है। गिब्रान की मृत्यु टीबी से और लिवर सिरोसिस से हुई। 10 अप्रैल 1931 न्यूयॉर्क में उनकी मृत्यु हो गई। वो सबसे ज़्यादा याद किए जाते हैं द प्रॉफिट के लिए। 1923 में ये एक कलेक्शन है 26 फेबल्स का, मुझे नहीं पता फेबल्स क्या है, 26 फेबल्स का। इसे 40 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और इसे एक मास्टरपीस कहा जाता है। और जो पहली कहानी है वो भी द प्रॉफिट है, जो हम कल पढ़ेंगे। काफ़ी लंबी है, पेज नंबर 7 से पेज नंबर 69, सो दैट इज़ ऑलमोस्ट 50 पेजेस। तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। नहीं, पहली कहानी द कमिंग ऑफ द शिप क्यों लिखा है यहाँ पर? ठीक है, अभी 12 ही मिनट में ख़त्म करते हैं। तो ये खलील गिब्रान की कहानी थी और उनकी लिखी हुई कहानियाँ हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। हैप्पी अम्बेडकर जयंती। थैंक यू सो मच, बाय।